1230 રૂપિયાની એક ટિકિટ લો એક પર્સનની, બરાબર? એટલે તમે આખો દિવસ ફરી ફરીને થાકી જાઓ તો તમે ઢીલા પડો નહીં. મેન વિશાલ 1230ની બે એક ગાડીને હજી રખડવી છે જો હવાર દીના ભૂકાશ કાઢવી છે અહીંયા. ગઈકાલે જે તમે બધા વ્લોગ જોયો એ તમને બધાને કે સારો જ લાગ્યો હશે એવી આશા કરીએ છીએ. અને આજના વ્લોગમાં છેલ્લે સુધી બના રહેજો. ફેમિલી જો હવે પડી ગઈ છે હાંજ, કેવો મસ્ત લાગે જો. તો હવે બહાર બસું પડી છે, આપણે જવાનું છે હવે બહાર. ફેમિલી આ બાજુ પાર્કિંગ છે, અહીંયા છે વિલિયમ ફ્લાવર બધા જોવા જવાનું છે જો. યુનિટી ગ્લો ગાર્ડન, એમ વ્યૂ પોઈન્ટ. આ ભાઈને જો સ્ટુડન્ટ હારે વહી જવું છે રાજસ્થાન જો પ્રતાપગઢ. રાજસ્થાન વિશાલભાઈને જવું છે ભાઈ. હવે રાજસ્થાન નહીં તો ભાવનગરની કપાય પાછો ભાવનગરની. કામકાજ ચાલુ છે જો આ બધું બની જાય પછી મસ્ત થઈ જાય. અહીંયા ડેમના દરવાજા દેખાયો જો. નર્મદા ડેમના દરવાજા, સરદાર સરોવર ડેમના દરવાજા ખોલે એટલે ભૂકા. જઈએ આગળ જઈએ હવે, જે હોય તમને હમણાં બતાવીએ પાછા. ફેમિલી ગાર્ડન લેવામાં આવ્યા હતા એ બંધ છે, હવે તો જઈએ હવે. બીજું હું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી લેસર શોમાં, ચાલો તો ત્યાં જઈએ. ફેમિલી હવે આપણે આવી ગયા છીએ અહીંયા બસમાં બેસવા. અહીંથી પાછા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જઈશું, ત્યાં લેસર શો જોશું અને પછી ત્યાંથી રવાના થઈશું. બસ આવે છે, ફૂલ ભરાઈ જાય તો બીજી બસમાં અમારે મેળ આવશે. અહીંયા જો ભૂલૈયા ગાર્ડન છે જો, પણ એ રહી ગયું, અમારે મોડું થઈ ગયું ને એમાં. ફેમિલી હવે આપણે આવી ગયા છીએ અહીંયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી લેસર શો જોવા માટે. તો હવે ત્યાં અંદર જઈશું અને તમને લેસર શો બતાવશું. તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી બના રહેજો. ફેમિલી અહીંયા જો કંઈક ફંક્શન છે અત્યારે જો, ફંક્શનનું આયોજન છે અહીંયા જો. ફેમિલી આપણે પાછા આવી ગયા છીએ અહીંયા જો સરદાર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી લેસર શો જોવા માટે. હવે ખાલી લેસર શો જોવાનો છે, પછી હવે જે આગળ હોય તમને હમણાં બતાવું. નાઇટનો વ્યૂ હો એનો જો છે ને બાકી એક નંબર. દિવસ કરતાં નાઇટનો વ્યૂ મસ્ત છે જો, બહુ મસ્તીનો છે આમ જો, લાગે ને બાકી એક નંબર. આ જો પબ્લિક મજા લે છે ફોટોશૂટ ને એવું બધું કરવાની જો. ફેમિલી જો આજે દિવસે હું તમને બતાવતો હતો ને એમાં જુઓ આ બધું આ નોર્મલી લાગતું હતું, પણ અત્યારે તો લાઇટિંગમાં કેવું મસ્ત લાગે. બાકી આ બધું જો લાઇટિંગ છે જો, લાગે ને બાકી જોરદાર. પબ્લિક જો બધું લાઇટિંગ શો જોવા માટે બેઠેલું છે જો, કેટલું પબ્લિક બેઠું છે. હમણાં લાઇટિંગ શો ચાલુ થાય. અહીંયા સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમા છે જો, છે ને બાકી કાંઈ ઘટે આમાં? કાંઈ ન ઘટે. ઘટે તો ખાલી પૈસા ઘટે અહીં મોજ કરવા આવવાના. બાકી મોજ ને મોજ જ છે ખાલી. એમ 1230 રૂપિયાની એક ટિકિટ લો એક પર્સનની, બરાબર? એટલે તમે આખો દિવસ ફરી ફરીને થાકી જાઓ તો તમે ઢીલા પડો નહીં. મેન વિશાલ 1230ની બે એક ગાડીને હજી રખડવી છે જો હવાર દીના ભૂકાશ કાઢવી છે અહીંયા. તમે બધા એક વખત મુલાકાત લેજો, એની મજા આવે એવું છે, બહુ સરસ છે. ખાલી ટિકિટના 1230 અને ભાડાના હોય એટલે પૂરું ખલાસ. બપોરે જમવું હોય તો જમવાના લાવવાના, નકર નહીં. એટલે મોજ જ આવ્યા કરે. એટલું પબ્લિક બેઠો જો અહીંયા. विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार,
वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबहन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। प्लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ बरसों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में
फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही 6वीं हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर, मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयिता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाएं और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं भी नतमस्तक हो जाती है। देश को बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के समान